May I request S.S. Gupta ji to please come up on the dais? Guys, a big round of applause for Gupta ji. May I request the Secretary of AIRC, Vishnu Tulsian, to please come up on the dais? And may I request the Chairman of AIRC to please escort the Speaker of the day, Girish sir, on the dais. Friends, while they are getting settled off, a very important discussion which was happening during the break was, we all know our guru, the tax expert Girish Ahuja sir. But we also need to have one important thing for sure in the challenges which we are facing in the profession is to start educating each other. I think the sharing of knowledge, where we all are our own expert, has to be adapted now and has to be taken up, where we share whatever we know to our fellow members. So, to start with the session, may I request the Chairman AIRC to please felicitate Girish Ahuja sir. Introduction. And I request the Secretary of AIRC, Vishnu Tulsian, to please introduce Girish sir. सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा जी के बारे में बोलना कुछ भी ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कम भी नहीं हो सकता। फिर भी सर के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर गिरीश आहूजा इज एलुमनाइज ऑफ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड ही वॉज रैंक होल्डर थ्रू आउट इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशंस. He was nominated by the Government of India as member of the tax force for redrafting the Income Tax Act. He is an independent director on in the board of many companies. He has authored more than 25 books on direct taxation, both for students and members. He has delivered thousands of lectures on various topics of direct tax organized by ICAI, ICSI, Chamber of Commerce, Voluntary, and many other management institutes. And he is the president of SRCC Alumni Association for more than 20 years. And today he has completed 2948 lectures as of now. 4298. 4298, sorry. And I invite sir to please come. Thank you, Vishu, for such an elaborate discussions and introduction of the person who needs no introductions. And kuch bhi bolna kam hai, but I request the chairman to have few things to speak upon before we request sir to deliberate. So I'll just take 1 minute before a few other delegates who are still having their snacks may enter this hall before sir starts his deliberation. Sir, there is a public demand. Apart from whatever you would be speaking today, do touch upon section 43BH. And there is one thing that I would also like to tell, address to the delegates. So, बचपन में ये होता था कि जब अपने बच्चों को कुछ देना होता था तो अपने ना कुछ और खाने के साथ मिला के दे देते, क्योंकि otherwise that kid will not take it. So, the point is that the institute has made it mandatory that even for the non-corporates, the financial statements, there is a format now that has to be followed from 1st April 2024. So for that purpose, in such a seminar where Girish sir is deliberating and you are participating in huge numbers, we have provided you with the guidance note for the financial statements of non-corporate entities, and that is going to become mandatory. So please make best use of this book. With this, I would request Girish sir to please address this gathering. Over to you, Guruji. Sitting on the dais, the chairman of the East India Region Council, CA Devyan Patra ji. Vice chairman, of course, going to be the chairman very soon, CA Sanjeev Sanghi ji. CA SS Gupta ji, of course, he's always there when I am there. CA Vishnu Kumar Tulsian ji, Secretary of the branch. CA Ravi Kumar Patwa ji must be sitting in front of me, no doubt. CA Nitish Moore ji, ये इलेक्शन वाले हैं, ऐसे कह देते हैं. और एक और है, जिससे मैंने अपॉलॉजी लेनी है,
मैं गलत नाम ले गया था, अघोर दूध वाला जी टीटीपी से चेयरमैन, क्योंकि मैंने उनको जैन साहब कह दिया था. तो समटाइम्स यू फॉरगेट, यू नो. चलिए सर, लेट मी टेल यू, we knew that nothing is going to come in the interim budget. It never been happened, except in 2019, when Mr. Piyush Goyal came out with certain amendments. Salary deduction increased from 40,000 to 50,000. Instead of having one house, you can have two houses for self-occupation. The DDS on interest from 10,000 were raised to 40,000. Those were certain things. At that time, the government was not sure whether they will come back or not. And this had never happened earlier, I tell you. But this time they know it. Nothing is going to happen. We are going to come back. That's why nothing has come. Let me tell you, nothing has come except that whichever sections, which were, you know, there was a sunset clause that it will close by 2024. That has been extended to 2025. That was required. Section 10(4)(d), Section 10(4)(b)(f), Section 10(23)(e), Section, very important, TPO Section 92(c)(a). There was supposed to be faceless assessment and no directions were supposed to be issued under 19(2)(c)(a) after 31st March 24. But they are not ready with that faceless TPO. So therefore, extended to 31st March 25. Because of TPO, because there was DRP also, Dispute Resolution Panel. That was also said, nothing will come after 24, it will be faceless. Extended to 2005. Similarly, IT-80 was supposed to be faceless. Up to 31st March 24 was the date, extended. So IT-80 is not going to be faceless this year, or maybe next year they will. Similarly, procedure under IT-80, again extending. जो extend नहीं किया, उसको याद रखिए, जान के नहीं किया, 115 BAB. You know what is 15 BAB? The rate of tax at the rate of 15% for manufacturing unit. You had to commence the production by 31st March 24. वो नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? इसलिए आप रिलैक्स हो जाएंगे और 31st March 24 तक आप commence करेंगे. Quite possible. They may extend it the next budget. लेकिन इस पर intentionally नहीं किया है. So those who are looking for a tax to be levied at the rate of 15%, provided it is a manufacturing unit, they should commence their operation by 31st March 24. That's why it has not been done. 115 BAB has not been changed. Other section, wherever there was 24 sunset, it has been even ATIAC. Startup. Startup was supposed to get a deduction of 100% for a period of 3 years. Am I right? 3 consecutive years. There also, they were supposed to commence its activity by 31st March 24. Again extended to 25. ATIAC has extended, ATLA has been extended. Those are the things, wherever they wanted, they have done it. But be sure, 115 BAB has not been extended. That point you have to keep in mind. There was not supposed to be any change. Convention has always been there. But I don't know why was the hype about that. Doesn't matter. Before I take up anything, since 43BH is a burning issue, I have been telling them from the last year. लेकिन हम तो लास्ट में सोचते हैं कि मार्च आने वाला अब क्या करें. Please note, if there is any sum payable as on 31st March, our duty is to find out, is there any sum payable on 31st March? If there was any sum payable before 31st March and it has been paid, maybe paid after 15 days or 45 days, there is no question of reporting that. There is only a question of interest. But as regards 3CD, amendment will come. Let me tell you, it is our duty to find out, is there any amount due on 31st March to a micro or small enterprise? First question, we have to ask the client, please give us the list of those persons whose amount is due. Has the payment been made to them within 15 days of the supply if there is no agreement?
15 days of the supply. If there is no agreement. 15 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए. 31 मार्च से 15 दिन नहीं गिनने. सप्लाई जब हुई वहां से अगले 15 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए. नहीं हुआ तो डिसअलाउ करना है. If the supply is made on 29th of March, add 15 days, you should have made the payment. If there is an agreement, what is the period of date in the agreement? 30 days. So 30 days में payment होना चाहिए. Date of agreement is 45 days. 90 days, nothing to do with 90 days, 45 days. Agreement से कुछ नहीं होना है. 45 days is the maximum. So it is 15 days or the period specified in the agreement which cannot be more than 45 days. Payment हुआ कि नहीं हुआ. Purchase order में लिखा जाता है ये terms of payment. वो agreement ही माना जाएगा. क्योंकि they have written a purchase order, they have made supply, so an agreement. It is an agreement. No need of a separate agreement. But 90% purchase order में terms of payment लिखा होगा. So if it is more than 45 days, maximum is 45. If it is 30 days, maximum is 30 days. If it is nothing mentioned, only 15 days. First point is clear. If there is a supply which is defective, you are supposed to inform within 15 days the defect of the supply. And they have to rectify the defect. After the rectification, the period will start. Once you accept it, period of 15 days or 45 days will start. पहला पॉइंट तो ये है. सुन लीजिए. अब लोग पूछते हैं हमें क्या पता he is registered under SME or not. It is our duty to write to him. Kindly let us know whether you are registered under SME or not. If you are registered under SME, kindly furnish us the certificate of registration. ये लिख दीजिए, ये हमारी ड्यूटी है. फिर भी वो रिप्लाई ना करे तो एक लेटर और लिख दीजिए. You were given, the census letter was sent to you to allow to send to reply to us whether you are registered under not or not. We are giving 1 week more, failing which we will presume that you are not registered under SMI. Your job is over. Your job is over. Tell him not to reply. Can you understand? Tell him not to reply the second letter. If he replies, 90% have given the registration number on their bill. You are caught there. If the registration number is there, you have been intimated. If the registration number, even chartered accountant are covered under SME, कभी हमें मिलती है 45 दिन में पेमेंट? मिलती ही नहीं है साल भर. लेकिन you can get yourself registered. You can get your ऑडिट नहीं करी वो चीज नहीं है. वो तो जब बिल रेज होगा उसका 45 डेज. सर्विस तो रेंडर करिए, वो तो प्रोविजन है. On 31st March there is a provision of audit, but bill is the payment of 45 days. Don't expect that. First audit and then submit a bill and then only it will be given to you. ऐसा थोड़ी है कि बगैर ऑडिट के भी आपको ले लेंगे 45 दिन में. वो नहीं होगा. सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड एंड बिल शुड हैव बीन रेज्ड. वो 45 डेज है. अब जरा इनसे पूछिए. अब आप साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं. इफ देयर इज अमाउंट shown as payable, it will be disallowed. Were you disallowed last year? Then how can our return be covered? Please try to understand. Were you disallowed any expenditure which was due to them on 31st March 23? You have already been given deduction. So how can you disallow it? So it is only for the current year, 23, 20. Understood, sir? Logic. Let us go for a logic. Whatever due prior to 1st April 23 is not covered. Why it is not covered? Because that was never disallowed under 43B. Was it disallowed? No question. So how can you disallow now which was not disallowed last year? It's only for the current year, 23, 24 or 31st March, and you have to pay in addition to that interest 3 times of the bank rate, compounded monthly. Compounded monthly.
that part will not be in CD. If it is given, you may have to mention. If it is not given, they will not ask you. But 43B, you have to write in the. I'm not concerned with the income tax return. You don't file an income tax return. It is the assessor who files the income tax return. You help him to file. So I'm not talking about income tax return. I'm talking about Form 3CD. Somebody asked me, is this covered 44AD? Is this section applicable to 44AD? Is this section of 43B applicable? नहीं है. 44AD कहता है notwithstanding anything contained under section 28 to 43C. Notwithstanding anything contained under section 28 to 43C. तो 43B तो है ही नहीं कवर उसमें. अकाउंट्स ही नहीं बनाते तो कहाँ से हो जाएगा? When you are not making accounts, you only have to say credit payable. But do you maintain accounts? No. So 43B नहीं. कोई कहता 40A IA TDS का. सर TDS का सेक्शन भी नहीं लगता है 44AD में. लेकिन 271C में पेनल्टी पड़ती है for non-deduction of tax assets. वो different है. That point is different. Here what I am trying to explain, for 44AD it is not. अब आया traders. Are traders covered under 44 or 43B clause H? अब ध्यान रखना. सर्टिफिकेट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, ओनली ट्रेडर. 2021 में ये आया था कि हम एसएमई को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर लोन फॉर बैंक्स एंड दे हैव टू बी रजिस्टर्ड उद्यम ही है ना रजिस्ट्रेशन का. और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया. अगर वहां पर सिर्फ लिखा है ट्रेडर एंड नो अदर थिंग, दे आर नॉट कवर्ड. दे आर नॉट कवर्ड अंडर 43B. वो नहीं करना है डिसल. सिंपल ट्रेडर हो. आप कहेंगे कैसे लिखा है? सर एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखिए एमएसएमई एक्ट में. एंटरप्राइज की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर लिखा है, वो वहां पर ट्रेडर नहीं लिखा है. बी केयरफुल. अगर हाँ, ट्रेडर कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस, ट्रेडर कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स. सो यू विल हैव टू सी हिज सर्टिफिकेट. कई सोशल मीडिया में चल रहा है कि अब ये आ गया, उसका नंबर डालिए और आपको पता लग जाएगा कि वो एमएसएमई में कौन से उसमें कवर्ड है. अरे नंबर देगा तभी तो डालेंगे. मेरी बात को समझे. हम नंबर अपने आप कैसे डाल देंगे? हाउ डू वी नो हिज नंबर? Let him provide registration number, then we can check whether he is covered under his. But if he does not provide number, tell him not to provide. Nothing will happen. Are you getting my point? If you have to be careful, tell your client, please either make the payment to them or take an undertaking. Write a letter, 2 letters to him. One, asking for, it is our duty to ask whether you are covered or not. And second, tell him not to reply. And then again write a letter that I had given you intimation on that date and copy enclosed herewith. You have not responded to our letter. We are again giving you one more week time to respond to that letter, failing which we will presume that you are not covered under MSA. He is not replying. How do I know? Even if he is registered, doesn't want to reply. So what can I do? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं. मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया. उसको कह दो ऐसे ड्यूटी पूरी करे, नहीं तो डिसअलाउ करना पड़ेगा. मैं बड़ा क्लियर हूं. ये 43H ये जाएगा नहीं, क्योंकि एमएसएमई ने मांगा है. ये हमने नहीं प्रोवाइड किया, ये लॉ ने नहीं प्रोवाइड किया. क्योंकि एमएसएमई पीपल वर सेइंग वी आर नॉट गेटिंग दैट इंटरेस्ट एट ऑल. ऑल्दो यू हैव रिटन दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. लेकिन देता ही कोई नहीं है इंटरेस्ट. और हम इन्फोर्स भी नहीं करते. हम कोर्ट में नहीं जाते, कहते हैं कल माल ही नहीं लेगा हमसे, इसलिए कोर्ट में भी नहीं जाते. इसलिए उन्होंने कहा आप यहाँ डाल देंगे, ऑटोमेटिक डिसअलाउंस होगा. एंड व्हेन इट इज ऑटोमेटिक डिसअलाउंस एंड इट इज अ डिसअलाउंस ऑफ परचेज, इट्स नॉट अ डिसअलाउंस ऑफ इनकम, इट्स अ डिसअलाउंस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ परचेज फॉर विच पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. तो आपका तो लॉस भी आ सकता है. इनकम से उल्टा आ जाएगा. अगले साल वो लॉस हो जाएगा. क्या होगा? डिसअलाउ करोगे, इनकम बढ़ जाएगी. पैसे कहाँ से दूंगा? If I have purchased goods worth 1 crore rupees and I have not made the payment, 1 crore will be added to my income. I have to pay tax on 1 crore, amounting to about 34 whatever lakh is coming to be tax on that. कहाँ से दूंगा? और अगले साल लॉस हो जाएगा. फिर कहाँ से उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा?
Are you getting my point? There is a practical difficulty, but only idea is let him not respond. If he responds, I am telling you, you will have to make the payment to him. Clear, sir? Any other question on 43BH you have in mind? Who is the auditor? Auditor duty is not the auditor duty, it is the duty of the client. Ask the client to do it. Provide the information to us. Provide the information. If he doesn't provide information, we will see that. How do you prove that he is covered under MSME? Give me the certificate. If the certificate is not there, he is not SME. Clear, sir? Any? Iska ji? $43B लगता है उसमें 43B लगता है when you have claimed it as an expense. 43B is when you have claimed it as an expense. They may be covered under interest, but is it covered? Have you claimed it an expense? You have not claimed. लेकिन याद कीजिए payment of 10,000 exceeding 10,000 in cash दोनों जगह covered है. One 48(3), another capital expenditure. That amount is ignored for the purpose of calculating depreciation. Remember, that amount is ignored. यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है. So 43B हमारे लिए है, उसके लिए तो रेवेन्यू है, उसने तो सप्लाई किया है. उसने सप्लाई किया, आपने मशीनरी खरीदी है. क्या मशीनरी में लिखा है वो कॉस्ट में नहीं जाएगा या कॉस्ट डिसअलाउड होगी? डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है, 43BH में नहीं आता है. That's all. Any other, sir? Traders not covered if they are pure traders. If they are not rendering any service, if they are not manufacturing, they are not covered. They are being 2021 में नोटिफिकेशन आया था कि ट्रेडर्स को भी MSME में ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग. उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है MSME, तो उनको ये एडवांटेज दे दिया गया. लेकिन ये एडवांटेज नहीं दिया गया क्योंकि एंटरप्राइज के वो लिखा है 43BH में एंटरप्राइज. एंटरप्राइज की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है. एंटरप्राइज की डेफिनेशन उसी सेक्शन में है, सेक्शन 2 ऑफ द MSME एक्ट. पढ़िए, कभी किसी के पास है तो यहाँ पर जरा निकालिए MSME एक्ट 2016 और उसमें देखिए ट्रेडर की डेफिनेशन, एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है. अरे निकाल लीजिए ना, अभी पता लग जाएगा. सर, regarding outstanding as on 31st of March, the provision says any sum payable by the SSE to a micro and a small enterprises beyond the time limit specified. My understanding or reading of the provision is, if what was outstanding on 31st of March is within the period of 15 days or 45 days as the case may be, that should not be considered for the, हाँ, नहीं 15 और 45 है और बियॉन्ड 31st ऑफ मार्च आई मे हैव डिलेड मेकिंग पेमेंट. वो हमने 20 मार्च को खरीदा मैंने माल. हाँ, तो 15 दिन ऐड करिए ना 20 को. हाँ, तो वो तो नेक्स्ट ईयर में चला गया सर. नहीं सर, 31 मार्च को पेबल है कि नहीं? 20 मार्च 31 मार्च को पेबल है, but it is not payable beyond the time limit of micro time limit and small. specified under section 15 of the MSME Act, not here. Agreed. Time limit specified is 15 days. Agreed, sir. With respect, you know, आज VAT और service tax में भी the amount is payable on the 21st of following month or 15th of the following month. If it is not payable as on the 31st of March, as per the MSME Act, as per the agreement, either whether within 15 days or 45 days, then I humbly submit, sir, that should not be considered for disallowance, sir. Then what is 43B? Sir, Then what is 43B? Sum says any sum payable. Yeah. Payable on which date? Payable on 31st of March, Yeah. मेरा payable है. And if it has not been made due the specified date, specified date is 15 days. Specified days is post 31st of March. So as on 31st of March, it is You not. know when you are doing audit whether the payment has been made within 15 or not 45 days. I agreed, sir, at the time, but the provision says if it is payable beyond the specified. No. Again read. Any sum payable. Please read. I'll read.
Sir, any sum payable by the SSE to a micro and a small enterprise beyond the time limit specified in section 15. So if on 31st of March what was outstanding was not within 15 days or 45 days in case of an agreement, nothing is allowable. It is only that 50 days and 45 days. Sir, there might be cases of purchases which have been made, say, 2 months back or 1 month. I'm not saying. I'm saying it is already due. They are due, so they will be hit because it is on 31st of March. Oh no, sir. नहीं अगर जनवरी में खरीदा तो वो तो वैसे हिट हो गया. सर जनवरी वाला हिट होगा 45. नहीं मार्च वाला भी हिट होगा. सम पेबल एज ऑन 31st मार्च. नहीं वो तो ये कह रहे हैं 31 मार्च को मेरा है और मेरे को भी 4 दिन और देने हैं, तो आप कैसे डिसअलाउ कर देंगे? तो 4 दिन में बात कर दीजिए, हम मना नहीं करते. अरे 43 भी तो यही कहता है ड्यू डेट अंडर द रिटर्न. वो ड्यू डेट अंडर द रिटर्न कहता है ना, वो वहां पर रिटर्न है या 15 डेज है 45 डेज. सर नो, वो 43 भी कहता है कि अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक दे देंगे हम अलाउ कर देंगे. इसी तरह अगर स्पेसिफाइड डेट में दे देंगे तो अलाउ कर देंगे. जिनेश जी, द पेमेंट्स in respect of purchases where 15 days or 45 days have expired as on 31st of March. Oh, no, sir. No. इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें लिखा है payable beyond the time limit. अरे purely which is not paid beyond the limit. ये लिखिए paid, payable नहीं है. Paid and not given within the time specified. Sir, payable. अरे सर नहीं सर, ये तो पर्पज ही डिफीट कर दिया. सर ऐसा है, लिख दिया सबने. सर देखिए, आप कह रहे हैं लार्ज इंपायर कह रहे हैं हम लेंगे नहीं उनसे, इसलिए तरीका निकलेगा. बिल वाइज पेमेंट करनी नहीं, बिल वाइज करो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हाँ ये सो पेमेंट ये कह रहे हैं हम तो बिल वाइज करते नहीं, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देते रहते हैं. तो थर्ड आप ये नहीं कह सर पुरानी रोक ली नहीं दे दी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. या तो बिल वाइज दीजिए, नहीं तो पुरानी दे दी नई रोक ली, ये नहीं हो सकता. नहीं, या नई दे दी पुरानी दे दी, ये नहीं होगा. नो सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सर आराम से पढ़िए, गलत नहीं है. सर पढ़ लीजिए, गलत नहीं है. आइए. हाँ जी. इंटरप्राइज की डेफिनेशन तो पढ़ो यार. ओनली स्मॉल एंड मीडियम एंड माइक्रो एंड स्मॉल. मीडियम इज नॉट कवर्ड. 50 करोड़ तक, 50 करोड़ टर्नओवर. अरे एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखो सर, नॉट माइक्रो और स्मॉल. एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखो, आप फिर गलत पढ़ रहे. माइक्रो होगी तो वो तो उसके टर्नओवर का है, स्मॉल है तो टर्नओवर है. व्हाट इज एन एंटरप्राइज? प्लीज रीड फ्रॉम समबडी हियर. एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखिए एमएसएमई एक्ट में. ओ सर वो एंटरप्राइज के बाद ही माइक्रो लगाया है. हेलो बात है इधर. अरे सर माइक्रो एंटरप्राइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर एंड द क्वांटिटी इज डिफाइंड. एंटरप्राइज हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड. वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इनकम. इनकम की डेफिनेशन अलग है, टोटल इनकम की डेफिनेशन अलग है. तो इनकम हैज बीन डिफाइंड. सर ऐसे मत बोलो सर. Sir, micro has been defined with reference only to for your the turnover and your investment in plant and machinery. Investment in plant. Similarly, small has also been equally defined. Correct. You did the definition of enterprise. And enterprise is defined to mean other than traders. Other than traders नहीं लिखा है. Who are No, other than traders नहीं लिखा है. They say into the manufacturing or provision of services. जी, पढ़िए, other than trader word नहीं लिखा है. Please read the definition if you have. किसी के पास निकाला नहीं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं. एसएमई एक्ट निकाल लिया. सेक्शन 2 देखिए, यंग लोग निकालते हैं. हम लोगों को तो आता ही नहीं ना चलाना. हमें तो कॉल रिसीव करना आता है या करना आता है, या ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सएप करना आता है. जस्ट ब्रिंगिंग, यू गिव द चांस ऑफ रीडिंग आउट.
Enterprise means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods. Manufacture or production of goods. In any manner pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries Development and Regulation Act 1951 or engaged in providing or rendering of any services or services. So, here is the definition, enterprise. And read in the 43B word is enterprise. Read in the 43B the word is enterprise. Agreed now? Please, we have to read the law. Whenever there is no definition given in the Income Tax Act, we have to refer to the definition given under the respective act. And the act says industrial undertaking, manufacturing or producing goods or providing services. Trader is not covered there. Yeah. वो इस सेक्शन में थोड़ी लिखेगा, रजिस्ट्रेशन में लिखेगा। सेक्शन रजिस्ट्रेशन का पढ़िए, कल का कोई जीएसटी में नहीं लिखा, और एक्सटेंशन का 24 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का जीएसटी में, यहां थोड़ी है। सर आपको पहले ये डेफिनेशन का चैप्टर में रजिस्टर्ड वर्ड नहीं लिखा जाता, वो माइक्रो स्मॉल का टर्नओवर दे दिया, फिर उसका कहा अगर रजिस्टर्ड है तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो बाद में आ रहा है ना, अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप 20 लाख से नीचे है तो जीएसटी में कवर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं माफ है, या 40 लाख से नीचे है तो क्या है, तो नाम तो देना पड़ेगा, टर्नओवर क्या है। वो ठीक है कि योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख और 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस यू आर एग्जेम्प्ट। तो ये आप माइक्रो को दिया हुआ है इतना इन्वेस्टमेंट और इतना टर्नओवर, वो आप 50 करोड़ और उससे ऊपर है तो स्मॉल है, क्लियर है सर। बट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, अनलेस एंड अनटिल यू आर रजिस्टर्ड यू आर नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ माइक्रो, क्योंकि लोन देते ही नहीं है जब तक वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं करते। चाहिए सर, चाहिए। हाउ डू यू नो दैट ही इज माइक्रो? हाउ डू यू नो? व्हाट इज द गारंटी? Those people will say he is micro, this is micro industry or small industry. क्या बोला? दोनों करेगा सर। हाउ डू आई नो दैट उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, मुझे खत्म। सर आप तो कलकत्ते वाली बात करेंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। मैं हमेशा यहां से कुछ सीख के जाता हूं। गंगोत्री यहां पर है, उससे पूरी इंडिया में है, उससे एक सर्टिफिकेट ले लीजिए दैट ही इज ए ट्रेडर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। टेक ए सर्टिफिकेट दैट ही इज ए ट्रेडर। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मोदी जी का जमाना है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। कंप्लीट डिटेल ऑफ एवरी आस्क इन द बैंक। उस वक्त अभी पोस्ट ऑफिस नहीं हुआ, अभी पोस्ट ऑफिस डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, सारी एफडीआर 10,000 डिडक्शन होता था, अब तो 40 हो गया। टेल मी दोज एफडीआर, you know about that? You know only of the TDS point. But wait, section 206AA says if the interest paid is more less than 10,000, bank is supposed to provide all that information. फिर क्या? Next thing, how many mutual fund I have? 7 म्यूचुअल फंड। मैंने देखा, सर मेरे पास तो 6 है, इस वहाँ कहाँ से आ गया? कहता नहीं हमारे आपके नाम पे 7 है। मैंने देखी यार, एक मुझे नंबर दे दीजिए। मैंने 7वां नंबर नोट किया, यूटीआई का था, 2,37,000 रुपए थे उसमें। मैंने कहा मुझे नंबर दे दीजिए। घर गया, याद आया 25 साल पहले 10,000 रुपए यूटीआई का म्यूचुअल फंड लिया। ग्रोथ स्कीम सर, इनकम तो दिखाई नहीं। मेरा एड्रेस चेंज हो गया, उस वक्त पैन इंपॉर्टेंट नहीं था, वो चलता रहा। मैंने कहा यार नोट करने का, गया 15 दिन में यूटीआई से 2,37,000 मिला। मैं कहा थैंक यू इनकम टैक्स, दे नो मच मोर देन आई नो। लास्ट ईयर मेरे रिटर्न भर रहा था, मुझे रिटर्न नहीं भरनी आती, फॉर्म मैंने ही बनाया है, रिटर्न भरनी नहीं आती क्योंकि हमें कंप्यूटर नहीं आता। आप कौन से अपने आप भरते हैं? आप कौन से अपने आप भरते हैं? हमारे जूनियर ही भरते हैं, हमसे नहीं आती। हमें कंप्यूटर आते ही नहीं तो कैसे करेंगे? पेशेंस नहीं है। वो रिटर्न भरा, कह रहा सर 616 रुपए आपने नहीं दिखाए।
और मैंने कहा यार सारे पिछले सालों में भी दिए, 616 कहाँ से आ गए? मैंने कहा दिखाना, ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। देखा, पढ़ा, उसमें लिखा था BOB। BOB तो बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, मेरा तो कोई अकाउंट नहीं, मैं तो सारे तेरे को दे रखी। याद आया 2016 माई वाइफ एक्सपायर्ड, तो एक बैंक का लॉकर खाली पड़ा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैंने उसको खाली कर दिया। उसमें सब FDR लेते थे, 10,000 रुपये की FDR थी, भूल गया। उसने कहा ये अभी मैच्योर नहीं हुई, बाद में ले लेना, मैं भूल गया। फिर भी मैंने कहा ये 10,000 रुपये में तो इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ये कम क्यों है 616 रुपये? बाद में याद आया मेरा वहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट भी था, वो इनऑपरेटिव था और इसलिए वो चार्जेस भी ले रहे थे उसके, और नेट इंटरेस्ट 616 दिए। मैं गया वहाँ पर, कहते जी हाँ आपकी FDR है, 37,000 रुपये मिल गए। मैं कहा थैंक यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे नो मच मोर देन आई नो। दैट डे ही टोल्ड मी दैट यू हैव ट्रेवल्ड 8 times अब्रॉड ड्यूरिंग 2018-19। आपको कैसे पता है? मैं 8 बार गया हूँ। कहता हमने लिंक कर रखा है इमिग्रेशन से। मैं कहा 8 बार गया हूँ, लेकिन मैं पैसा तो एक ही बार खर्च किया है, वो भी बेटी को मिलने गया था। बाकी 7 टाइम तो मैं तो इंस्टीट्यूट के लेक्चर देने गया था। कहता दैट वी डोंट नो, डिड यू ट्रेवल? आई सेड यस बट दे सेंड द टिकट टू मी, आई ट्रेवल्ड एंड आई डिलीवर्ड लेक्चर देयर। कहता स्क्रूटनी आएगी तब बताना कि क्यों ट्रेवल किया 7 बार, लेकिन 8 बार आप नंबर गया, सब कुछ सा डिटेल, कहाँ कहाँ गया, अबू धाबी, मस्कट, कुवैत, क्या था बहरीन, ये सब जगह गया, नंबर गए भाई साहब। कहते एक चीज़ और बताऊँ आपके लिए, आपके ऊपर सर्वेलेंस है। मैं क्या सर्वेलेंस है? कहता 256 टाइम यू हैव ट्रेवल्ड इन इंडिया दैट ईयर, 256 टाइम। सर मैंने तो 1 पैसा भी नहीं खर्चा। कहता वो नहीं मुझे मालूम, मैं इंस्टीट्यूट से टिकट आती है, मैं लेक्चर दे आता हूँ और वापस आ जाता हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाता अपने घर का, तो कल ड्राइंग्स भी मांगोगे क्या हुई मेरी? कहते ये नहीं पता, वहाँ बताना ये 256 टाइम क्यों है। दे नो मच मोर देन व्हाट यू नो। अरे मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं न्यूयॉर्क गया था टिकट लेकर, बेटी तो मेरी कोई दूर रहती थी, फिर मैं सारा US घूमा था फर्स्ट टाइम। हाउ डू यू नो दैट? You can tell me ticket of Delhi to New York, New York to Delhi because you have a record. But how do you know that? कहते छोड़ दो, क्या हुआ? कहते जहाँ जहाँ गए थे अपने फोटो खींची थी और फेसबुक में डाल दी थी। We like that. Surveillance, we like that. मैं मर गया। मैंने कहा हमारी तो बेटियां क्या करती है, शादी में जाती है स्टडेड विद डायमंड ज्वेलरी, दे दिस, और 1 मिनट में डाल देती है फेसबुक में। वो कहते वी लाइक मोर, वी लाइक इट मोर। सर पता है उनके पास क्या क्या है? 123 कंट्री से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, 123 कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दे हैव कंप्लीट डिटेल अबाउट यू। ये जाते हैं वैट का क्रेडिट लेते हैं, वैट दे दो वापस हमें, वहां से आ रहे हैं, वहां तो वैट है ना, वहां तो GST नहीं, वैट का क्रेडिट चाहिए। अरे सर आपके पासपोर्ट में लिखा जाता है या आपके अकाउंट में आता है, और आपने तो पैसे दूसरे खर्चे हैं। समझ में आ गया? कभी वैट का क्रेडिट मत लेना, समझ रहे हैं? They know much more than what you know about yourself. सारे ट्रेडिंग आपकी। पहली बार आया, मैंने कहा तूने तो यार 1 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। कहता मैंने तो आज तक शेयर नहीं बेचे। आपको कैसे पता? मैं कहा ये ले। कहता सर मैंने तो बताया नहीं आपको। कभी बताते थे ये क्लाइंट हमें बताते तो देखो पेस्ट टाइम जो आया था क्या हुआ था, किसी ने नहीं बताया था आपको कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो आपको सब पता है, वोट आर देंगे सर, दे आर यू वेट एंड वॉच। अभी तो बहुत कुछ चेंजेस आ रही हैं, बोलूँगा नहीं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और स्कोप बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कहेगा आपकी रिटर्न तैयार है, सिर्फ साइन कर दो, हमें नहीं चाहिए आपकी डिटेल। ये 148 है, क्या आया है? यही तो है, वी नो अबाउट योर सेल्फ, ये इनकम एस्केप है, गिव अस द रीजन। पहले उल्टा होता था, पहले रिटर्न भरो तो हम बताएंगे क्या इनकम एस्केप क्या हुई है, अब तो पहले ही बता देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू देन यू हैव योर अबाउट योर सेल्फ। सर वक्त बदल गया है, बदल जाइए, नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी। मोदी जी को आप हरा नहीं सकते, आना तो उन्होंने ही है, जो मर्जी कर लीजिए। और दूसरी बात ये मोदी जी की बात नहीं है, ये ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है। सर मैं 4 साल पहले एयरपोर्ट पे खड़ा था, क्रोमा के शोरूम में चला गया पावर बैंक ले लिया। उन दिनों पावर बैंक का रिवाज होता है, अब तो कोई लेता ही नहीं। पावर बैंक ले लिया 18 से। कहता था अपना फ़ोन नंबर देना, मैंने फ़ोन नंबर बेवकूफ़ों की तरह दे दिया।
कहता आपका आईपैड कैसे काम कर रहा है, आपका आईफोन कैसे काम कर रहा है, आपका टीवी कैसे काम, मैंने तेरे से तो कभी खरीदा ही नहीं है। कहता क्रोमा के शोरूम में इंडिया में किसी भी जगह से खरीदा है, हमारे पास 10 साल की डिटेल, 10 साल की डिटेल है उनके पास, और कैश ऑन डिलीवरी अमेजन एंड फ्लिप का जो भी है उसका भी उनके पास रिकॉर्ड है, जो छोटे छोटे नहीं बड़ी ट्रांजेक्शन है। तभी तो 2 लाख की लिमिट लगा दी थी कि आप एलवी का पर्स ना खरीद सको, क्यों ल्यू विटन खरीदोगे 2 से ऊपर तो चेक देना ही पड़ेगा या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देनी। ये हो रहा है। और मैंने ल्यू पुलिस वाले कुछ दिन कहा बेटी ले गई, मैंने कहा भाई एक प्लेट है, मैंने कहा 2 से नीचे नहीं है, कहता सर 2 से नीचे हमारे पास है ही नहीं। और मैंने कहा यार 40% के बाद टैक्स लेके फिर 3 लाख का लूँगा पर्स तो बड़ा महंगा हो गया, समझ गए ना, 40% देकर 30% लूँगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया चलो 10% वाला गिन लेता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसलिए वहाँ से दे दिया। शेयर में तो 10% है ना, मैं कहूँगा सोचो 10% दे दिया, बाकी चलो जो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप उनके बारे में सब पता है, आपके बारे में। अगर आप कैश मीमो में कहते हैं नंबर दे दो, लेडीज फटाफट नंबर देती है अपना, मेरा किस बात का नंबर है, मैं नहीं देता, मैं देना तो पड़ेगा। मैं कहा ना कोई रिटर्न करना हो मैं जो मर्जी लिख लूँ, पता नहीं उसने क्या नाम लिख के कर मेरे को पकड़ा दिया। नहीं तो सर दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इवन फॉर लेस देन 1,99,000 तो लेस के बारे में बड़े फटाफट देते हो, एलबी में जाएंगे लो नंबर दे दो, ये लो, अरे यार सर एक्सचेंज करना हो इसलिए ले रहा हूँ। नो, डोंट गिव योर नंबर, गिव योर नंबर व्हेन यू पेमेंट मेड बाय क्रेडिट कार्ड, डोंट गिव योर नंबर अदरवाइज। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, समझ रहे मेरी क्या बात है। 269 ST, you can't give the payment more than 2 lakh, they can't accept it. Less than 2 lakh, why are you giving number? You will be responsible. So please be careful. डिजिटलाइजेशन आ गया है, सुधर जाओ। मैं तो सुधर गया हूं, 100 चूहे खा के हज को चला गया। आपने 99 खाया तो एक और खा लेना, इसके आगे मत जाना। नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिजिटल, नॉट बिकॉज ऑफ मोदी जी, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। यस सर। कौन, किसने कहा अमेंडमेंट आएगा? नहीं सकता, क्योंकि वो तो एसएमई एक्ट में लिखा है, हमने थोड़ी लिखा है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। सर वो बाकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्यों इसलिए है कि हम अपने इनकम टैक्स एक्ट में कह रहे हैं, वो तो एसएमई में लिखा है 15 और 45 दिन में देना ही पड़ेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं ड्यू डेट ऑफ रिटर्न? नहीं आएगा मैडम, इट विल नेवर कम, इट विल नेवर कम। और वो तो सीडी फॉर्म चेंज हो रहा है ना, वो हो रहा है चेंज। हाँ, पेबल की लिस्ट लेनी पड़ेगी उससे। हाँ, वो कौन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द एमएसएमई, क्वालिफाई करिए सर, क्वालिफाई करिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिसअलाउ अंडर 43B, वी कांट मेंशन एनी, वी कांट गिव एनी एक्सप्लेनेशन बिकॉज वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन। क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कर दिया क्वालिफाई, अगली बार आपको रखेंगे ही नहीं। फिर वही यहां से सीख के जाता हूं, सिखा के नहीं जाता मैं नहीं बताऊं। ट्रेडर करे हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ट्रेडर से लीजिए, उसको कहिए ट्रेडर के थ्रू सप्लाई कर दे मुझे, पर मैं नहीं कर सकता। तरीका क्या है? सर देखिए, बिल अगर उसने लेट रेज किया है तो जीएसटी में क्या कहता है? जीएसटी भी लग जाएगा ना। जीएसटी एक्ट में क्या कहता है? डेट ऑफ सप्लाई और बिल विच एवर इज। आपने सप्लाई को रिसीव कर लिया है तो ठीक है, आपने सप्लाई को पेंडिंग रखा है कि बिल आएगा, देन वी विल चेक इट, देन इट इज ओके। योर सिस्टम, एसआरपी आपका जो सिस्टम बना रखा है वो देखा जाएगा, लेकिन टेस्ट भी तो करना है 2 दिन। वो 2 दिन टेस्ट आप जो करिए, हम जिम्मेवार नहीं है। टीडीएस में कहिए ये सिस्टम है कि नहीं है, यू हैव टू डिपॉजिट बाई 7 days, यू डू वट एवर यू लाइक, यू क्रेडिट और यू डोंट क्रेडिट, 7 days में देना है ना टीडीएस का। पेड विच एवर इज अर्लियर, तो कई बार तो बिल 31 मार्च को आया, आप क्रेडिट 4 मार्च 5 अप्रैल को जा करने जा रहे हैं। नो, 31 मार्च, विच एवर इज अर्ली। क्लियर? हाँ जी, अरे ये तो एक ही रह गया टॉपिक। हाँ जी, बोलिए।
तो कह तो दिया, क्वालिटी अप्रूव नहीं हुई तो कह दो क्वालिटी चाहिए, किसमें डिफेक्ट है, इन्फॉर्म विद इन 15 डेज। लॉ है, एमएसएमई एक्ट में लिखा है, यू हैव टू इन्फॉर्म। हाँ, 15 दिन से ऊपर नहीं, और फिर वो रेक्टिफाई करेगा, और रेक्टिफाई करके फिर वही लॉ लग जाएगा। सारे गुड्स रिजेक्ट ही करते रहना। 15 दिन मिल जाएंगे और क्या है। बिल से पेमेंट से 2 महीने वाला हो ही नहीं सकता। 45 डेज डिसअलाउ करना पड़ेगा आपको 43B में है। अरे पेबल नहीं है क्या 31 मार्च को? ड्यू का मतलब नहीं है। इज इट पेबल और नॉट? हैव यू मेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम और नॉट? रिटर्न फाइलिंग का मतलब ही नहीं है। 43BH में रिटर्न फाइलिंग नहीं है, वो नहीं है रिटर्न फाइलिंग। 43BH में लिखा है डेट स्पेसिफाइड अंडर दी एसएमई एक्ट, वो 15 और 45 है। यार वहां लिख दिया है ना एच में, पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर दिस डेट, अदरवाइज विल बी डिसअलाउड। अगौर जी 43B में स्पेसिफिकली इट हैज बीन स्टेटेड दैट क्लॉज H को ये प्रोवाइसो एप्लीकेबल नहीं होगा। एच में एप्लीकेबल अलाउड नहीं है वो। There are several clauses A to H. So A to G G तक will है। be get the benefit of that proviso. Clause H will not get the proviso of लिखा that. है, लिखा है वहां। You मिलेगा will, when you pay, you will get the relief ईयर in इन the विच year यू of मेक द payment. पेमेंट मिलेगा, लेकिन पेमेंट बेसिस में मिलेगा। वो डिसअलाउ कर देंगे, अगले साल अलाउ करेंगे। देखिए फरवरी का महीना आ गया है, मार्च में ऑडिट करना, अब पूछ रहे हैं। सारा साल क्या करते रहे सर? 10 महीने निकल गए, किसी ने बॉदर ही नहीं किया है। दिस इज द लॉ। तो पेबल है 31 सर, मार्च। जनवरी का पेमेंट नहीं किया वो तो वैसे ही वैसे ही डिसअलाउ हो गया, covered है। आपका 45 दिन पार हो वो गया। तो वैसे ही कवर्ड है, हाँ, अप्रैल कवर्ड में है, वो कर तो दिया गया, वो तो डिसअलाउड है। अप्रैल में आपको अलाउ मिलेगा। इस बात को कर दिया तो इंटरेस्ट देना है। हाँ इंटरेस्ट है। नो नो, 31 मार्च को पेबल नहीं है। 31 अगर 31 मार्च को पेबल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर वो लगेगा इंटरेस्ट। इतने सवाल कर रहे हैं, किसी तरीके से बचा दो। इंटरेस्ट 3 टाइम्स है एंड मंथली कंपाउंडेड। 3 times the bank rate compounded monthly. मंथली 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट। सर बस करो। I hope we should stop this topic. Let Mr. Ahuja continue with the others. लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अभी भी दिल नहीं है मानता, दिल को मनाना पड़ेगा सर। लॉ तो लॉ है। हाँ जी, हैं? नो 43B में लिखना पड़ता है, ये डिसअलाउड बोला है। व्हाट हैपेंस? मैंने बोला ना 23 का क्या मतलब है। 23 का तो अलाउ हो चुका है ड्यू बेसिस पे। हाँ, वो 15 है, उसके लिए रिपोर्टिंग नहीं है। नो रिपोर्टिंग। यू विल हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट। सर उसमें लिखा नहीं, हैव यू इफ द इंटरेस्ट बीन प्रोवाइडेड काइंडली इन्फॉर्म। अरे 3CD का इंतजार करिए। सर इंटरेस्ट अगर आपने दिया है तो डिसअलाउड है, दिया ही नहीं है और वो डिमांड नहीं कर रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। Even if you provide, then you will have to write there that it has been provided. Sir, 43BH is over. If you Let us come make- to something else. आइए, let us start with anything. अब सबसे खतरनाक चीज बता, शेयर से हम क्या करा करते थे? 2 चीजें हैं। The shares are as investment and I convert it into stock and trade. Which section is applicable? 45(2). When a capital asset is converted into stock and trade, it is treated as transfer, but capital gain
will arise only in the previous year in which such converted asset is sold or otherwise transferred. यही लॉ है सर. मेरे पास शेयर्स हैं जिसको मैंने कैपिटल एसेट दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं. मैं बचाना चाहता हूँ टैक्स. रिलायंस के शेयर है, मेरे पास 10,000 शेयर है रिलायंस के, मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ. तो मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में. आज हो गया, देयर इज ए ट्रांसफर, बट कैपिटल गेन विल नॉट अराइज. देयर इज ए ट्रांसफर, द कैपिटल गेन विल नॉट अराइज. कब अराइज करेगा? व्हेन आई सेल. एंड इफ आई सेल ओनली 20% ऑफ दैट, तो आई विल बी लायबल टू पे टैक्स ओनली ऑन द 20% एज कैपिटल गेन एंड 20% एज बिजनेस इनकम. यही रूल है ना, यही रूल है ना. एम आई राइट और रॉन्ग? 45(2) सेज कैपिटल गेन इमीडिएट नहीं लगता. कब लगेगा? जब उन शेयर को बेचोगे. उस वक्त दो गेन होंगे, एक बिजनेस इनकम विच इज सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड सेकेंड इज फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द कॉस्ट. क्योंकि लिस्टेड शेयर है तो 112A लगेगा, तो इंडेक्स तो होना ही नहीं. माइनस द कॉस्ट विल बी टैक्सेबल नॉट इन द ईयर. व्हेन विल इट बी टैक्सेबल? व्हेन आई सेल दैट. ठीक है ना सर? यही है. नाउ टेक इट द अदर वे. You are a trader of stock shares, and shares are your stock in trade. Shares are your stock in trade. You convert that stock in trade into an investment. What will happen? You convert your stock in trade into investment. You can do it. Into investment. What will happen? 28(6)(a). 28(6)(a) says, if a stock in trade is converted into a capital asset, it will be treated as transfer, and you will have to pay tax as business income on the basis of the fair market value of that asset on the date of transfer. Business income मानी जाएगी कब? सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मैं सोच रहा था इसको इन्वेस्टमेंट करके आगे 10% लगेंगे या 20% लगेंगे. यही है ना सर? 15% जो भी लगेगा. कहता रुकिए, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड था, पहले ये लॉ नहीं था, 3 साल पहले आया. यू हैव कन्वर्टेड इनटू ए इन्वेस्टमेंट, डू इट, वी आर नॉट कंसर्न, बट पे इनकम टैक्स ऑन दैट एज बिजनेस इनकम. एप्रिसिएशन मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इट्स कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस. उसके बाद आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा. मैं क्यों बोल रहा हूं? ये तो शेयर है, शेयर के लिए तो किया गया था. फंस गए बिल्डर. मैं कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा हूं सर, 10 स्टोरी. बाद में नजर आया 9 बिल्डिंग, 9 फ्लैट, 9 फ्लोर तो बेच देता हूं, 1 फ्लोर में मैं अपना ऑफिस बना लेता हूं. बेचता नहीं, अपना ऑफिस बना. सर आपको उसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा. किस दिन? जिस दिन आपने कन्वर्ट कर लिया एज कैपिटल एसेट. आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नो डाउट, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस द कॉस्ट of that building will be liable to be taxed under section 28(6)(a). Business 28 section 6(a) आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी जिस दिन आपने कन्वर्ट किया है. स्टॉक इन ट्रेड तो हाउस प्रॉपर्टी में कंटिन्यूड है, 23(5) लगता है. मैं शेयर्स की बात करी, शेयर में तो कोई 23(5). अगर बिल्डिंग है और आपने खाली रखी है तो उसके लिए 23(5) 2 साल तक खाली रख सकते हैं. 2 साल के बाद डीम टू बी लेट आउट मानी जाती है. सेक्शन 23 सब सेक्शन 5. 2 साल तक खाली रख सकते हैं, नहीं तो डीम टू बी लेट आउट. लेकिन अगर आपने अपना ऑफिस बना लिया तो आपने कन्वर्ट किया ना, डेप्रिसिएशन नहीं लेनी आपने, तो फिर स्टॉक इन ट्रेड कैसे होगा अपने ऑफिस में? नहीं, ऑफिस से स्टॉक इन ट्रेड होता ही नहीं. ऑफिस में डेप्रिसिएशन मिलेगी. आप करो जो मर्जी, दिखाओ मत, नीचे रहे. वैसे मैं ये बताओ, कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड, पहले लगता है एसेट इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड. उल्टा बोल रहा हूं. 45(2) क्या एंट्री पास करते हैं सर? मेरे पास एक मेरी बिल्डिंग है, कौन सी नोशनल एंट्री होती है? लीगली तो कोई एंट्री है ही नहीं, ऊपर से उठाकर नीचे रखते हैं अगर बैलेंस शीट देखी जाए. द वर्ड यूज इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड.
आई हैव नॉट कन्वर्टेड, कन्वर्टेड होता है जब बाहर से लाऊं, ट्रेडेड होता है कि ऑलरेडी है, ऊपर से उठाकर नीचे डाल दूं। लेकिन टैली नहीं मानेगा, वो तो एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए वो करना पड़ेगा जो आप, अदरवाइज एंट्री नहीं है, अकाउंट कंप्यूटर में एंट्री करनी पड़ती है, स्टॉक इन ट्रेड टू वो। लेकिन वैसे तो जनरल एंट्री कोई होती ही नहीं थी, कभी एंट्री होती थी नहीं होती थी, जो हम अपनी किताबें लिखते थे, अब होती है, अब होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टॉक इन ट्रेड को, ट्रेडर्स ये जितने भी जो हमारे ब्रोकर्स हैं उसके पास दो पोर्टफोलियो हो सकते हैं। ब्रोकर्स कैन हैव टू पोर्टफोलियो, वन पोर्टफोलियो एज इन्वेस्टमेंट, अनदर पोर्टफोलियो एज स्टॉक इन ट्रेड। याद रखना। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर दो हैं तो डीपी भी दो रखिए, डीमैट भी दो में रखिए, अलग अलग रखिए, कीप ए सेपरेट थिंग। अदर हाउ डू वी नो दैट दिस इज फॉर कैपिटल एसेट, दिस इज फॉर इन्वेंट्री? पहला तो पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रेडर करते हैं, ये जो भी इनको स्टॉक इन ट्रेड रखना है कि कैपिटल एसेट रखना है, ये डिसाइड जो होगा ये अपनी किताबों में डीपी में डाल दिया आपने। लेकिन अब सर्कुलर नंबर 6 बटा 29 फरवरी 2016, जरा ध्यान रखना। सर्कुलर नंबर 6, एक पुराना सर्कुलर, सर्कुलर 4/2007, वो जून 17 का था। एक नया सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 6, सर्कुलर नंबर 6 डेटेड 29 फरवरी 2006। 2006 to 25 हो सकती है, हाँ हो सकती है, नहीं 2006 नहीं होगा, 2016 बेसिकल, तभी तो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो हो ही नहीं सकती लीप ईयर, 29 फरवरी तो हो ही नहीं सकती। 2016 को आया, 29 फरवरी 2016। ही सेज अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यू वांट टू शो बिजनेस इनकम, प्लीज कंटिन्यू। बट इफ यू आर होल्डिंग दैट स्टॉक और शेयर्स फॉर मोर देन 1 year, more than 1 year, you can show it as long-term capital gain. You can show it as long-term capital gain. But mind it, in future, you will have to follow the same policy. This is circular saying. Please note, circular number 6, dated 29th February 2016 says that if it is held by you for more than 1 year, listed की बात करें, more than 1 year, okay. You want to treat it as a long-term capital gain. We are ready. We are ready to give you the benefit of 10%. But mind it, in future also, whichever share you are holding for more than 1 year, you will have to treat it as long-term capital gain. Not stock in trade, as investment. Pehla point clear hua? Now, as regards those shares which are less than 12 months and you are selling them, he said you will have to follow the circular number 4/2007. उसमें क्या लिखा है? अगर आपने बोरो, आपके कंपनी है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है? इज देयर रिटन देयर दैट इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट और वी कैन बाई शेयर फॉर स्टॉक इन ट्रेड? वो बताएगा। 90% यू डोंट बोरो टू इन्वेस्ट इन शेयर। हम बोरो करके शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपना पैसा लगाते। इफ यू बोरोड एंड इन्वेस्टेड इन ट्रेड, द इंटेंशन इज टू बाई एंड सेल, ट्रेडिंग। इफ यू आर डूइंग डेरिवेटिव, इट इज अदरवाइज बिजनेस. If you are doing intratrade, it is otherwise what you call speculation income. Intratrade तो speculation है और trading derivative business है. बाकी में your intention. If it is more than 1 year, once you have taken long term, continue to take it as long term. हमें तो फायदा है कि आप बिजनेस इनकम दिखाएंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20 मिलता है या 10 ही लगता है ना लिस्टेड का, तो उसमें तो 30 लगेगा, वो तो आपके ऊपर है। बट माइंड इट दैट फॉर less than 12 months, follow circular number 4/2007. Show your intention. Was there the intention to buy and sell? Was there intention to invest? If you have invested, have you invested for your borrowed fund or you have invested for your own funds? You invest for your core fund, we can treat it as an investment. Secondly, what have you shown in the balance sheet? Is it capital? It is investment shown or is it shown as stock in trade? और एक बार stock in trade कह दिया तो 28(6) लग जाएगा। अगर एक बार तुमने इन्वेस्टमेंट कह दिया, बाद में स्टॉक इन ट्रेड में ले आए तो 45(2) लग जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? या 45(2) लगेगा या वो लगेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट। आई एम कमिंग बैक। हाँ जी, स्टॉक इन ट्रेड में
कन्वर्ट कर दिया था। 112 से क्या लेना था? सर मैंने मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कैपिटल एसेट को पहले ही मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया था। जब ये 10% वाला जो क्लॉज इंट्रोड्यूस हुआ था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, तो मेरा क्या आज का रेट में अगर मैं वो कैपिटल एसेट को रियल में बेच रहा हूँ, मतलब स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहा हूँ, तो मेरा क्या कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा कि उसमें मेरे को 10% देना पड़ेगा? सर ऐसा है, आपको लिखा है 112A में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 112, that if your total income includes capital सर gain. मैंने कन्वर्ट कर दिया 112A। सर कैपिटल गेन कब हुआ? सर कैपिटल गेन तो उसी में ट्रिगर अरे वो डेफरमेंट है, ट्रांसफर कब हुई? बिफोर दिस 112A। आप बात को चीज को समझिए। देर इज ए पोस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन एट ए लेटर डेट, बट इंडेक्सेशन कब डेट तक अलाउ होता है? ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर और द डेट ऑफ कन्वर्जन। वो ट्रांसफर हमने उस दिन मान लिया गया था, लेकिन बेचा अब है, इसलिए 112A नहीं आएगा। सर ट्रांसफर का डेट में एग्जाम था ना 1038 में। हाँ तो मैं एक मिनट सर कैपिटल गेन पोस्टपोन कर दिया। आप कह रहे हो 1038 में एग्जेम्प्ट था उस वक्त, और आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कर लिया था, तो आपने उसको बेचा अभी? नहीं बेचा, अभी है। अभी बेचा है। ही इज टेकिंग ए केस वेयर 1038 में था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, और हमने कहा उसकी फेयर मार्क वैल्यू एंड द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी टेकन एट द कैपिटल गेन, और उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। लेकिन वो तो उस वक्त सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया था। बाई एंड सेल एसटीटी वगैरह तो है ही नहीं, एसटीटी तो दोनों में देना है, तो वो भी चेक कर, तो दोनों में देना पड़ता है सर, दोनों में देना पड़ता है सर, ऐसा नहीं करें। चलिए चलिए सर, आगे कोई और क्वेरी है? मैं अब सुन रहा हूं। Period of holding of shares. Listed share, everyone knows. Unit of equity per annum, everyone knows. Listed securities, everybody knows. It is 12 months. What is 24 months? किसके लिए 24 months है? हैं जी? 24 months. सवाल ही पैदा नहीं होता। Share of unlisted securities or other than unit or immovable property 2 years। वो तो immovable property तो बाद में आया ना, पहले तो shares of unlisted securities, shares है, और किसी को नहीं दे रखा। shares को 2 साल दे रखे, unlisted shares को 2 साल। अब क्वेश्चन आया, how do you tax them? There are 2 sections for taxing the capital gain. One is 3 rather, 112 for long term, 112A also for long term, where 112 is not applicable, and 111A again short term listed बताऊंगा, and then otherwise short term taxable at normal। ठीक है ना सर? 4 ही चीजें हैं। एक होता है short term taxable as normal, एक होता है taxable at 15%, ठीक है सर? एक होता है taxable at 10% without indexation 112A, एक है 112 taxable at 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। है कि नहीं है सर? क्लियर है सर? अब मैं आ रहा हूं कि अगर तो वो लिस्टेड है, शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ओनली 2 थिंग्स, शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एंड यू हैव ट्रांसफर्ड आफ्टर दैट 112A हैज कम, 112A आने के बाद ट्रांसफर किया है। वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 112, if your total income includes capital gain, long-term capital gain on the transfer of share, third condition, on which security transaction tax has been paid at the time of acquisition as well as on the time of transfer. But for unit, only at the time of sale, not at the time of acquisition. Unit में STT नहीं लगता, जब वो तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो थोड़ी दे रहे हैं, तो उस केस में आपको टैक्स लगेगा 10% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। यही रेट है सर, 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स है, ये 48 नहीं है, कंप्यूटेशन के लिए नहीं है, ये टोटल इनकम निकाल रहे हैं। एक मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, दूसरा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं 1 लाख माफ ले लूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से? पहले सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल इनकम इंक्लूड्स 1 लाख है।
मेरी बात को समझ रहे हैं मैंने क्या कहा है? हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो 1 लाख रुपया, माफ है, लेकिन मेरा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शेयर से या किसी से भी है, हाउ डज इट मैटर, वो 2 लाख है, तो क्या मुझे 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 2 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा? जी नहीं, क्योंकि पहले 48 लगेगा, फिर टोटल इनकम निकलेगी, उसके बाद टैक्स निकालते हुए लिखता है वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स। मेरी टोटल इनकम तो सेट ऑफ के बाद ही आएगी। हाउ डू यू कैलकुलेट माई टोटल इनकम? आफ्टर क्या होता है 5x ऑफ इनकम, देन सेट ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम, एंड देन यू कैलकुलेट टोटल माइनस डिडक्शन इफ एनी, चैप्टर 6 से डिडक्शन इफ एनी एंड टोटल। टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो 1 लाख से जाता है तो टैक्स है, 1 लाख है तो मार। तो टोटल इनकम निकालते हुए सेटअप तो करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू सेट ऑफ। ये नहीं कह सकते मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शेयर से 1 लाख आया है और वो लॉन्ग टर्म के लॉस जो है मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वन वे आई एम टेलिंग यू। एंड देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और फ्रॉम शेयर्स 1 लाख से ऊपर 1 लाख है तो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन आइदर बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपका सेटअप तो करना ही पड़ेगा। सेटअप इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। तो करने के बाद अगर 1 लाख बचा है तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक और बता दूं, 112 में चैप्टर 6 है तो मिलता ही नहीं, वो तो सभी में नहीं मिलता, 87A में नहीं मिलता, 87A नहीं मिलता है। वो जो 7 लाख तक माफ है या वो 5 लाख तक माफ है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता अगर आपका वो वाला गेन है तो 112A वाला, बाकियों में मिलता है। लेकिन 112A में मना कर रखा है कि 87A नहीं मिलेगा। पहला ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? क्वेश्चन है कोई इसमें? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। टैक्सेशन चैप्टर 111 से लेकर 115 वगैरह तक ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स स्पेशल प्रोविजंस हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ सेक्शन तो कितने सेक्शन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सर? एनीवन? हाउ मेनी सेक्शन वी हैव इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट? किसी ने देखा हो तो बताओ। किताब एक्ट पकड़ा ही नहीं कभी, कितने? फिर भी अंदाजा लगा लीजिए। हैं? 2 लोग कहेंगे 298 है, देख कर भी सब गलत है। मोर देन 550 सेक्शंस। कैसे हो सकता है सर? 28 to 44 इज बिजनेस इनकम, 45 to 50 इज कैपिटल गेन, 20 to 27 इज हाउस प्रॉपर्टी, 56 to 59 इज अदर सोर्सेज। इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन द बिजनेस चैप्टर क्या करेंगे? 44 कैपिटल ए, 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए ई, भूल गए 44 ए डी ए, ए भी तो डाला बीच में, ई, 44 बी, 44 डबल बी, 44 बी बी ए, 44 ट्रिपल बी, 44 कितने सेक्शन है? 35, 35A, 35AB, 35AC, 35AD, ये क्या सेक्शन नहीं है? 35E, 35, ये सारे सेक्शन हैं। 111A, 112, 112A, 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115AE, 115AF, AG, ये सारे सेक्शन है सर। 115B, 115 डबल बी, बीबी, बीबीसी, बीबीडी, बीबीई, है नहीं 115 बीबीई, वो सबसे खतरनाक सेक्शन। 115B से शुरू हुआ, BA आया, BAA आया, 115B है, फिर BA आया था, फिर BAA आया कंपनी का, फिर BAB आया, फिर BAC आया इंडिविजुअल का, फिर BAD आया, फिर BA आया है कि नहीं आया? BAE भी आया कोऑपरेटिव के साथ, फिर 115 डबल बी आया, ट्रिपल बी आया, BBC आया, BBD आया, BBE आया, BBF भी है, BBG भी है, BBH भी है, BBI भी है जो ट्रस्ट में आया अभी है ना? है 115 से लेकर जा रहा है, फिर 115V आ गया। उन्होंने कहते ये WXYZ तो रह गया है, लेकिन टनेज टैक्स है 115VA, VB, VC, VZ हो गया, खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, VZA, VZB, VZC, ये सब सेक्शन है। अगर 150Z आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 150ZA, ZB, ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है सर। आर यू नोटिसिंग? 550 के ऊपर सेक्शन है हमने, और कितना? सेक्शन 10 क्लॉज 23C
कितने प्रोवाइजो हैं सर? 23 प्रोवाइजो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23C। कितने प्रोवाइजो हैं? सिर्फ 23 है। और हर के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3। भूल गए 2A 2B? देख लो जाके। आपको क्या 14th प्रोविजो ढूंढो सर? कैसे ढूंढोगे 14th प्रोविजो? क्या करोगे? 14th प्रोविजो ढूंढोगे? 18th प्रोविजो कैसे डालोगे? एक्ट खोलना पड़ेगा। पहली बार खोलेंगे पता नहीं लगेगा हाँ कहां पर खोला। प्रोवाइडेड दैट जहां लिखा होता है वो फर्स्ट प्रोविजो होता है। इन एनी लॉ wherever the word provided that is written, kindly note it is first proviso. Provided further that, second proviso. उसके बाद मत पूछना। I thank S.S. Gupta ji. I thank Viray Ocho ji. I also thank. Keep on adding also. उतने proviso हो जाएंगे। So जो पहला also होता है वो third proviso होता है। Mind it. जब भी प्रोवाइजो में लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सेकंड प्रोवाइजो। पहला आल्सो, थर्ड, अगला आल्सो 4, अगला आल्सो 5। गिनना पड़ेगा, बाई चांस मिस कर गए तो आप गए। और कई बार 17 प्रोवाइजो है, अब आप उन्होंने पहले डालना है, कोई बात नहीं, उससे पहले डाल देंगे, 17 ऑटोमेटिक 18 हो जाएगा। हमें क्या दिक्कत है? किसी का नाम भूल गया तो ऑल्सो ऐड करके बैकडेट पे भी कर देता हूं मैं। 23 प्रोवाइजो सर। और फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, कहते हैं ना सेक्शन। सेक्शन के नीचे क्या है सर? है जी? हाउ वेरी गुड। सब सेक्शन के नीचे क्लॉज, क्लॉज के नीचे, सब क्लॉज के नीचे आइटम, आइटम के नीचे सब आइटम। या अभी इनकम टैक्स शुरू हुआ है। सेक्शन के नीचे सब सेक्शन आता है तो सेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो सब सेक्शन आता है वो मेन सेक्शन है। जब क्लॉज आता है वो सब सेक्शन के बारे में बात करता है। जो सब क्लॉज आता है वो क्लॉज के बारे में बात करता है। जो आइटम आता है वो सब क्लॉज के बारे में बात करता है। जो सब आइटम आता है वो आइटम के बारे में। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, कीप ऑन एडिंग। फिर एक्सप्लेनेशन। आप फुल स्टॉप ढूंढ रहे हैं, कॉमा ही 6 लाइन के बाद आता है। सारा इनकम टैक्स मैंने सर किसी को कह दिया यार एक सेक्शन रोज पढ़ लिया। सर क्यों टाइम वेस्ट करते हो? हाँ समझ में तो आता नहीं, मैं फिर भी पढ़ ले। क्या तो आप कहते हो तो पढ़ लेता हूँ। गुप्ता जी 4 घंटे बाद फोन आ गया। सर मैं क्या हुआ? सर एक सेक्शन पढ़ा था 4 घंटे लग गए। तो कोई बात नहीं, लग गए तो क्या हुआ? क्या सुन तो लो, लास्ट लाइन में लिखा था इट इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2010-11। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं है। मैं तो आगे से लास्ट पढ़ा कर, यार बिगिनिंग में लिखा होता है एप्लीकेबल बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट। सो बी केयरफुल व्हेन यू रीड, ओपन द एक्ट, आइदर द लास्ट लाइन और बिफोर द फर्स्ट लाइन, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दैट एक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। ये टैक्स है सर, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, है ना? इंटरेस्टिंग तो है। सो कमिंग बैक, तो मैं अब 112 में आओ। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना सर? उसमें सब सेक्शन 1 है, उसमें लिखा ABCD। सब सेक्शन के बाद तो क्लॉज ही होगी, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज। पहले क्लॉज ए लिखता है 112A में, 12 में A1। इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, if there is a long-term capital gain, in case of individual or HUF, that part of long-term capital gain shall be taxable at the rate of 20%, and the balance income will be taxable at the normal rate. However, if the total before, chaliye, my point is what I was saying. क्या जी? हाँ 120. If the total income individual for income other than long-term capital gain is less than the exemption limit, so much of the capital gain will be shifted to the other income to claim a full exemption of that limit, which is 2,50,000 or 3 lakh as per the new rule, and the balance will be taxable at 20%. ये इंडिविजुअल एच में लिखा है। क्लॉज बी में लिखा है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, वही टोटल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, रेस्ट इज नॉर्मल रेट, वही जो रेट 22%, 30% जो।
क्लॉज सी, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन इन सी. सी में लिखा है that if there is unlisted securities or shares, then the capital gain on that share shall be taxable at the rate of 10% without taking the benefit under Proviso 1 and Proviso 2 of Section 48. उसमें लिखा है कि नॉन रेजिडेंट को अनलिस्टेड शेयर पे टैक्स 10% देना है, लॉन्ग टर्म पे 20 नहीं देना है. अनलिस्टेड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर कितना देना है? 10%. 10%. ये जब है जब 112 ही नहीं लगेगा. अनलिस्टेड में तो 112 लगता ही नहीं है. अनलिस्टेड में तो 112 लगता ही नहीं है. तो 10% टैक्स है जो उनको. 10 किसके ऊपर? अनलिस्टेड शेयर. अगर लिस्टेड है तो सीधा 112 में चले जाएंगे. अनलिस्टेड है तभी तो यहां आएंगे. लिस्टेड तो 112 में चले जाएंगे. क्लियर है? अब आता है डी, रेजिडेंट के केस में 20%. ठीक है, लेकिन अगर रेजिडेंट के केस में एक प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, ओनली शेयर्स, और जीरो कूपन बॉन्ड है, लिस्टेड कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड कंपनी के अगर हैं, और वो आपने 112 नहीं लग रहा, 112 लगता थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी हैज बीन पेड. अगर नहीं लगा तो इफ द टैक्स कैलकुलेटेड is 10%. If the tax on the total income is more than 10%, then we will ignore 20%, we'll take 10%. दोबारा बोल रहा हूं, अनलिस्टेड शेयर ऑफ मार्केट आप जब बेचते हैं तो वैसे तो ऑफ मार्केट है तो 20% लगना चाहिए, ऑफ मार्केट है. लेकिन लॉ ने लिखा है कि रुकिए, हम इसके ऊपर 10% लगा सकते हैं प्रोवाइडेड आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. तो 10% चॉइस आपकी है. आप कैलकुलेट कर लीजिए 20% आफ्टर इंडेक्सेशन एंड 10% विदाउट इंडेक्सेशन. किसके ऊपर? लिस्टेड शेयर है. अनलिस्टेड ही, अनलिस्टेड सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए 10 है. अनलिस्टेड नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है 10% है. लिस्टेड शेयर ऑफ मार्केट, लिस्टेड शेयर ऑफ मार्केट मीन्स नॉट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी नॉट पेड. उसके लिए रेजिडेंट को एक चॉइस दे रखी है, आइदर पे 20% आफ्टर indexation or pay 10% without indexation, whatever suitable to you. So you will have to calculate, is it better to pay at 20% or is it better to pay at 10%. लेकिन अनलिस्टेड शेयर पे 20% लगता है आफ्टर इंडेक्सेशन, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट के पास हैं तो कितना लगता है? 10%. क्लियर सर? दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन. Computation has to be done under 48. 48 ही तो कहता है ना, consideration price minus cost of acquisition and cost of removement and any expenses incurred whether directly or indirectly. फिर proviso डालता है, अगर नॉन रेजिडेंट ने शेयर खरीदे इन फॉरेन करेंसी और डिवेंचर खरीदा है फॉरेन करेंसी तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उसमें सीधा टैक्स लगेगा. और 2 कहता है इंडेक्सेशन होगा. यही है ना सर? सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन से बेच रहे हैं. अब आप अनकोटेड शेयर में ला रहा हूँ वर्ड, आई एम ब्रिंगिंग द वर्ड अनकोटेड शेयर, अनलिस्टेड नहीं, अनकोटेड. देखिए, लिस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर अनलिस्टेड भी अनकोटेड भी हो सकते हैं, है ना? पब्लिक लिमिटेड. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर तो नॉर्मल शेयर ही होते हैं. इस केस में जो अनकोटेड शेयर है, व्हेन यू ट्रांसफर दैट 50CA इज एप्लीकेबल. 50CA इज market value of that share on the date of transfer. It is exactly equal to 50C. 50C में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, 50CA में मार्केट वैल्यू पे बेचना है. किस शेयर को? अनलिस्टेड को कह रहा हूं, अनकोटेड. अनलिस्टेड और अनकोटेड, भाई कंपनी है उसके पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अनकोटेड है. यहाँ प्राइवेट लिमिटेड के तो होते ही नहीं कोट, वो तो हो ही नहीं सकते लिस्ट. प्राइवेट लिमिटेड तो कोट हो ही नहीं सकती सर, इसलिए वर्ड अनकोटेड लिखा है. प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, शेयर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा, इवन शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी वेयर इज अनकोटेड. अब उसको ट्रांसफर करेंगे तो किस में करेंगे? फेयर मार्केट. फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूल 11 UA1 क्लॉज C.
उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर उसके शेयर पे ट्रांसफर करिए। अगर नहीं करेंगे तो वेंडर को भी और वेंडी को भी 56(2)(10) लग जाएगा। वेंडी को तो लगना ही लगना है, वेंडर को भी लगता है। वेंडी वो तो जैसे 50C भी तो यही है, 50C भी तो यही है, वेंडर को भी लगता है, वेंडी को भी लगता है। तो शेयर में भी यही होगा। अगर आपने लेस देन मार्केट वैल्यू लिया तो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर वेंडर विल हैव टू पे टैक्स एट द फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द ट्रांसफर एट द ट्रांसफर, एंड द वेंडी द परचेजर विल हैव टू पे टैक्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द वैल्यू एट विच इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं गिफ्ट कर दूंगा तो सिर्फ वेंडी को लगेगा, वेंडर को नहीं लगेगा। गिफ्ट करेगा तो मार्केट वैल्यू लेनी नहीं है। इफ आई मेक ए गिफ्ट टू अनरिलेटेड पर्सन, I make a gift, so I am not liable to pay any tax because gift is not a transfer. Gift is not a transfer. But the buyer, the vendee, will have to pay tax because it is without consideration. He has received share and securities, and the value of that share and security is more than 50,000. They will have to pay tax. तो ये सोच लीजिए कि गिफ्ट करने में भी बायर को टैक्स लगता है, वेंडी को, वेंडर को टैक्स नहीं लगता। लेकिन मुझे ट्रांसफर कैसे करना है? फेयर मार्केट वैल्यू अगर करना है। ट्रांसफर मीन्स विदाउट गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन, सो यू हैव टू डू इट एट फेयर मार्केट वैल्यू। प्लीज नोट फेयर मार्केट वैल्यू अनकोटेड शेयर। आई हैव यूज्ड द वर्ड अनकोटेड शेयर विच इंक्लूड्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर एज वेल एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर। हम तो पहले ऐसे ट्रांसफर कर देते थे, याद है ना? हाँ कर दो, इधर इसको दे दो, इसको दे दो। आप एनक्रिप्टेड क्यों कर रहे हो? तो 57B आएगा, 56(2)(7)B। 56(2)(7)B कहता है when you want to issue share you cannot issue more than the कलकत्ता वैल्यू। एक का शेयर 2000 में बिकता था, समझ में आया? 1 रुपए का शेयर 2000 रुपए में हो प्रीमियम ना, 1999 प्रीमियम खत्म हो गया ना वो तो। फेयर मार्केट में 11U1 अरे 11U1 है और एक 11U2 है। 2 इशू के लिए है, ट्रांसफर के लिए 1 है, समझो ना सर। देयर आर 2 रूल 11U1 फॉर ट्रांसफर, रूल 11U2 और मर्चेंट बैंकर से सर्टिफिकेट लेकर डिस्काउंटेड वैल्यू पे आप करा सकते हैं, वो है इशू में है। लेकिन अगर शेयर आपने उसको बोनस शेयर दिए तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने उसको राइट शेयर दिए तो, अगर राइट ऑफ रिनंसिएशन है तो एप्लीकेबल है, अगर राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। 56(2)(7)B प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के शेयर हैं। हम कहते हैं चलो फर्दर इशू कर देते हैं, राइट इशू। सबको पैरी पासू देना पड़ेगा इक्वल। अगर आपने राइट ऑफ रिनंसिएशन रखा, नॉट अलाउड। कंपनी को टैक्स लगेगा सर। रिनंसिएशन में आपको शेयर कर ही नहीं सकते इशू। पहले 2 चीजों को इशू करें, आप कर रहे हैं। व्हेन आई एम मेकिंग एन इशू, हमारा 52 सेक्शन 2(7)B लगेगा, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं है। आप जब उसको रिनंसिएशन दे रहे हैं तो आपने तो 0 वैल्यू का दिया, या 2 रुपए का दिया, या 5 रुपए का दिया, वहां दिक्कत आती है ना। तो वो आपने उसको ट्रांसफर किया है दूसरे आदमी को, डीम्ड ट्रांसफर है, इसलिए कभी मत करना। सबको पैर इक्वल दे दो, हमें कोई दिक्कत ही, बाद में वो ट्रांसफर कर दे। लेकिन ये नहीं हो सकता यार 3 है शेयर होल्डर, लो इशू कर देते हैं, तू मत लियो, AB को दे देते हैं। नॉट पॉसिबल। माइंड दिस थिंग सर। हाँ जी सर, non-resident selling equity mutual fund, what would be the rate of tax, sir? फ्लाइट तो अभी बहुत टाइम है सर। फ्लाइट तो मैं ये भाग जाएंगे, मैं रहूंगा। मेरी फ्लाइट 10 बजे है, डोंट वरी सर। बाईबैक के लिए 115 क्यों है? सीधा पैसा लगता है कंपनी को 20% प्लस 12% प्लस 4%। सर हम बाईबैक कर लेते हैं, हम बाईबैक करते हैं, डिविडेंड नहीं देते। सुन लीजिए, डिविडेंड देने पे 30% टैक्स लगता है मिनिमम, अगर आपको इंडिविजुअल है तो 30 ही तो होगा ही ना, प्लस सरचार्ज प्लस वो सरचार्ज 15 से ऊपर नहीं हो सकता। बाईबैक करने में कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, और वो भी 20 प्लस 12 प्लस 4। लेकिन बाईबैक 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता एवरी ईयर।
You have the rule for buyback. You can buy back the share. हम यही करते हैं. वो कहता है यार बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. डबल टैक्स है ना कंपनी के ऊपर. पहले तो कंपनी दे, फिर शेयर होल्डर दे डिविडेंड पे. हम डिविडेंड नहीं देते, बाई बैक करा देते. बात को समझिए. बाई बैक करने पे टैक्स 12 + 12 20 + 12 कितना हुआ? 22 पॉइंट कितना प्लस 4 23% बनता है. और डिविडेंड लेने में 30% प्लस 15% अगर ज़्यादा इनकम है प्लस 4% आपको 36% लगता है. चॉइस इज योर्स. यू गो फॉर बाई बैक, यू गो फॉर डिविडेंड इशू. डिविडेंड आप डिविडेंड नहीं बांटना चाहते तो बाई बैक कर लीजिए. लेकिन बाई बैक के रूल्स हैं नॉट मोर देन 25% ही नहीं है. बाई बैक में कंपनी टैक्स देती है, शेयर होल्डर कुछ नहीं देता. यस सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट है. कुछ भी करो नो वैल्यू. यस कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? रिजर्व तो वही के वही पड़े. अरे कंपनी को क्या पड़ा, रिजर्व तो वही के वही पड़े हैं यार. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई बैक कर लो जितने में मर्जी कर लो. नुकसान तो बाई बैक क्यों कर रहे हो? इसलिए कि डिविडेंड बचाना है. फिर आपने बाई बैक ही अगर किया 10 रुपए में तो डिविडेंड कहाँ बचाया? अरे डिविडेंड जो नहीं देना तो उसके बदले बाई बैक किया आपने एट ए हायर वैल्यू. You can do it a higher value, and you pay tax on 23%, whereas you are supposed to pay at 36%. भाई, हैं? कहीं नहीं लिखा है पे में. कोई भी प्राइस में बाई बैक करो. No, it does not apply in buyback. 115Q में नहीं है. वो लिखा मार्केट वैल्यू में नहीं है. Whatever value you do it. अरे सर टैक्स तो मिल रहा है गवर्नमेंट को. मैं डिविडेंड के बारे में क्या फर्क पड़ता है कोटेड और अनकोटेड में? बाईबैक दोनों में लग गया है. बाईबैक पहले कोटेड में नहीं होता था, अनकोटेड में होता था. जब हमने लॉ बनाया ये तो सब कुछ बेईमानी हो रही थी. कंपनी भी टैक्स नहीं देती थी, शेयर होल्डर भी नहीं देता था. अब एटलीस्ट कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा ऑन बाईबैक 23%. माइंड दिस थिंग. हाँ ये नहीं वो तो आप कहेंगे मत करिए परचेज यार. अनलिस्टेड कंपनी घर के आदमी और कह रही है उसको कहता नहीं वो मैं नहीं परचेज करता, तुम कर लो. Nobody will agree. Nobody will agree. This is not allowed because this will treat us. उसी तो कहा गया equal ratio, pari passu. Otherwise no question of this right share. बोनस दे दीजिए. जी हाँ मैंने बोला ना वो माना ही नहीं जाएगा. कंपनी में तो दूसरा है, लिस्टेड कंपनी में वहां रिनंसिएशन अलाउड है. लिस्टेड कंपनी में अनलिस्टेड की बात कर रहा हूं. लिस्टेड में तो प्रॉब्लम ही नहीं है. लिस्टेड में तो मार्केट वैल्यू से हो रहा है. बाई बैक अगर वो कर रहा है रिनंसिएशन, आप रिनंसिएशन पे टैक्स दे रहे हो. आई एम ट्रांसफरिंग टू हिम, पहले मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ. ही इज गेटिंग द प्राइस, तो उसको आगे उसकी कॉस्ट वही मानी जाएगी जो वो है और प्लस व्हाट ही हैज गिवन टू हिम. या लिस्टेड में है ये. अनलिस्टेड में आपको टैक्स लगेगा 5627P. इशू किया कंपनी ने. दे शुड इशू एट नॉट मोर देन द फेयर मार्केट. बी केयरफुल अबाउट दैट. Sir, non-resident selling equity mutual fund, what will be the rate of tax, sir? कौन सा? इक्विटी म्यूचुअल नहीं बोलो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड. देखिए डिफरेंट है. इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 112A लगता है. हाँ दोनों में है. वो तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के दोनों के लिए 10% है. इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिसमें मोर देन 65% अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द म्यूचुअल फंड इन इक्विटी, वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है. एक होता है म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D, यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड अंडर 1023D. वो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं होते, वो डेट फंड होते हैं. क्लियर है? ये तो ऑफर दी है आपने, जो बाई बैक लेगा उसको उसके ऊपर टैक्स लगेगा, देगा, बाकी को नहीं लगेगा. बाकी के शेयर रहेंगे. बाई बैक कैन बी चॉइस. NRI selling quoted shares off market, then Quoted share in the at what price? market price. Unlisted or sorry, through recognized stock exchange or not? Other than recognized stock exchange. तो FII तो कर ही नहीं सकती. ये तो सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है. If he does it 20%, you know that 20%. If he does it 20%. अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके लोन लेके, कौन करता है सर? लोन लेके नहीं सर,
मेरा इन्वेस्टमेंट है शेयर में, मैं लैस लेता हूँ, लोन अगेंस्ट शेयर लेता हूँ, फिर इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ। सर, उनका व्यू है यू कैन डू इट, पर 99% पर्सन डू नॉट टेक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। आजकल की मार्केट छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ी हुई है तो कुछ भी कर लेंगे, अदरवाइज कोई लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सिवाय प्रॉपर्टी में। सर मैं जानना, लोन लेके इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी में की जाती है। सर आई वाज वांटिंग टू नो कि इंटरेस्ट का क्या होगा। आपको पता है इंटरेस्ट अलाउड ओनली फ्रॉम डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड। 56 सेक्शन पढ़ी है ना, 57 में लिखा है कि डिविडेंड, आप इसको डिविडेंड के बारे में भी बताइए। इंटरेस्ट डिविडेंड पे मिलता है, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट ले लीजिए। डिविडेंड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ द एसेट लो इन्वेस्टमेंट में, डोंट टेक इट फ्रॉम डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ द एसेट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Just in 5 minutes, we'll end up the program. Please request you to all to have a seat. It's a protocol to give a formal vote of thanks to our lovely speaker, Girish Sahu ji. A big round of applause for him. And may I request Gupta ji to please offer a formal vote of thanks. Well, friends, we have just heard Sri Girish Sahuja ji. It was not only knowledge, but entertainment also. Lot of entertainment during his deliberation. But, sir, we thank you very much from the core of our heart, and we expect you to be in Calcutta as and when we request you. Thank you very much. Please give him a standing ovation. Thank you. Thank you, Gupta ji, so much. And sir, this is our love from Calcutta. And we look forward for another 25 or 30 years for you to speak like this, sir. Thank you so much.